پچھلے دنوں سے سانحہ سے ریلیٹڈ ہے. وہ ٹاپک اس طرح کا ہے کہ بریکنگ بیریئرز، مطلب کہ جوا توڑنا. اگر انگلش میں دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں بریکنگ بیریئر، اور اردو میں جوا توڑنا، ٹوٹنا. میرے ساتھ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے 10 باب اور 27 آیت پر غور کریں گے. جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ ضرور نکالیں تاکہ وہ جانیں کہ خدا کے کلام میں کس طرح بیان کیا گیا ہے. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 10 باب اور 27. کوئی بات نہیں، جب ہم نے اتنی گرمی میں ورشپ کی ہے تب ہمیں کچھ نہیں ہوا تو ہم آدھا گھنٹہ اور برداشت کر سکتے ہیں. میرے ساتھ یسایہ نبی کی صحیفہ اس کا 10 باب اور 27 آیت اگر کسی کو مل گئی ہے تو اونچی آواز میں تلاوت کر سکتا ہے. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 10 باب اور اس کی 27 آیت. اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کاندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ جوا مسیح کے سبب سے توڑا جائے گا. آمین. مسیح کے سبب سے توڑا جائے گا. آپ سب لوگوں نے سنا، لیکن میں پھر سے دوبارہ ریڈ کرتا ہوں. گرمی ہے، کچھ لوگوں نے غور نہ کیا ہوتا ہے تو دھیان سے سنیے گا. خدا ان کا پاک کلام بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن آج ہماری زندگی سے کچھ زیادہ ریلیٹڈ ہے. اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ جو جوا مسیح کے سبب سے توڑا جائے گا. آمین. آمین. اس وقت مطلب کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے. ہماری زندگی میں ہمیشہ ٹائم گزرتا رہتا ہے، ہماری زندگی میں ہمیشہ لمحات چلتے رہتے ہیں. یہاں لکھا ہے کہ اس وقت کوئی ٹائم پرماننٹلی مطلب لکھا نہیں گیا کہ آپ کی زندگی میں یا میری زندگی میں، ہم میں سے کسی کی بھی زندگی میں کوئی ایک ٹائم لکھا گیا ہو کہ اس وقت، مطلب کہ کسی بھی وقت، ابھی بھی ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر بعد بھی ہو سکتا ہے، شام کو، کل، پرسوں، مہینے، 2 مہینے، سال، 10 سال، کئی سالوں تک ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہے کہ اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ کس کے سبب سے ہوگا؟ مسیح کے سبب سے. ہماری زندگی میں اگر ہم نوٹ کریں تو ہماری زندگی میں بہت سے جوئے، بہت سے بوجھ ہیں جو ہمارے کندھوں پر ہوتے ہیں. ہماری زندگی ہمیشہ بوجھ کے اوپر، ہماری زندگی ہمیشہ بوجھ تلے دبی ہوئی ہے. ہماری زندگی میں ہمیشہ کشمکش چلتی رہتی ہے. ہماری گردنوں کے اوپر جوئے بہت زیادہ مضبوطی سے رکھے ہوئے ہیں جو ہمیں ہمیشہ دنیا کی طرف زمین میں دھستی جا رہی ہے، دنیاوی طور پر ہمیں نیچے لے کے جا رہی ہے. لیکن اگر ہماری زندگی میں خدا کا مسیح ہوگا تو اس کے سبب سے ہمارا بوجھ بھی اٹھا لیا جائے گا اور جوا بھی توڑ دیا جائے گا. ہم لوگ اپنی زندگی میں اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس جوے کو توڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پیدائش کی کتاب اس کی 12 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن، اپنے ناطے داروں کے بیچ اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. اس میں خداوند خدا ابراہیم سے بات کرتا ہے اور اسے کچھ حکم دیتا ہے، اسے کچھ چیزیں بتاتا ہے جو اسے کرنی ہوتی ہے، جس کے سبب سے خداوند اسے برکت دیتا ہے. اور خداوند اگلی حصہ میں کہتا ہے کہ جو تجھے برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا، جو تجھے لعنت دے گا میں اس پہ لعنت بھیجوں گا. لیکن کیا ہے کہ اس سے پہلے کچھ کنڈیشن بتائی گئی ہیں خدا نے اس کی زندگی میں کہ تجھے یہ کام کرنا پڑے گا، دین جا کے تجھے برکت ملے گی، تب تیری گردن سے، کندھوں سے بوجھ اٹھایا جائے گا اور تیری گردن سے جوا. اس میں سے سب سے پہلے لکھا ہے کہ تو اپنے وطن، اپنے ناطے داروں اور ان کے پیچھے سے اور اپنے باپ کے گھر سے کیا کر نکل. ہماری زندگی بھی کچھ اسی طرح ہے. خدا نے اس سے 3 چیزیں کہی اور تینوں چیزوں میں ایک کام کرنا تھا. وہ کیا تھا؟ نکلنا. ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں، ایسی جگہیں ہیں، ایسے رشتے دار ہیں، ایسے کام ہیں جن میں سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. تب خدا ہمارے کندھوں پر سے بوجھ کو اٹھائے گا، ہماری گردن سے جو جوا ہے اسے توڑے گا، اور وہ خدا کے مسیح کے سبب سے ہوگا. لیکن پہلی کنڈیشنز کیا ہیں؟ خدا نے جیسے ابراہیم کو کہا کہ اپنے وطن کو چھوڑ. ہمارا وطن اچھا ہے، جیسا بھی ہے بہت اچھا ہے، کئی ملکوں میں اس سے بھی برے حالات ہوتے ہیں، لیکن خدا نے اس کو بولا اپنے وطن سے نکل. اس ٹائم ہم کس وطن میں ہیں؟ گمراہی کے، ابلیس کے جنگل میں ہیں. ابلیس ہمیں اندھیرے میں رکھتا ہے،
हमें उस वतन से बाहर निकलने की जरूरत है। फिर लिखा अपने रिश्तेदारों, अपने नातेदारों से के बीच में से निकल। हमारे रिश्तेदार सारे नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ हो सकते हैं, हमारे दोस्त कुछ हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन के नाम को अगर हम तरीके से जला देते जाए तो लाइट खुदावन का जलाता ही रहता है। खुदावन ने कहा कि अपने नातेदारों से, उनके बीच में से निकल। जब हम लोग उन लोगों को छोड़ेंगे जो हमें खुदा के कलाम से रोकते हैं, जो खुदा के कलाम को करने से रोकते हैं, जो खुदा के काम को सुनने से रोकते हैं, खुदा के काम करने से रोकते हैं, हमें उन लोगों में से निकलने की जरूरत है। फिर अपने बाप के घर से भी निकल। कुछ चीजें होती हैं जो हमारी रुकावटें बनती हैं, हमें उन चीजों को छोड़ना है। जब हम लोग इब्राहिम की तरह उन चीजों को छोड़ेंगे, उनमें से निकलेंगे, तब खुदा हमारी जिंदगी में अपने जलाल को, अपनी बरकत को, अपनी कुदरत को, अपने मसा को जाहिर करेगा। लेकिन जब तक हम उन्हीं चीज़ों में घुसे रहेंगे, उनमें से बाहर नहीं निकलेंगे, तो खुदा का जलाल, उसकी कुदरत, उसकी बरकत, उसका मसा, उसका पागरू हमारी ज़िंदगी में जाहिर नहीं हो सकता। खुदा ने कहा कि इन चीज़ों में से बाहर निकल। इब्राहिम उन चीज़ों में से बाहर निकला और आज हम उसके नाम को क्या कहते हैं? इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा। आज हम उसके खुदा की बात करते हैं, हमारा भी वही खुदा है। लेकिन क्या है कि खुदा ने उसे ऐसी बरकत बख्शी कि खुदा ने कहा आसमान के तारों को गिन, कि जितने वो होंगे उतनी तेरी औलाद होगी। खुदा ने उसे ज़मीन ऐसी दी, खुदा ने उसे औलाद दी, खुदा ने उसे बरकत दी। तो क्या है, खुदा ने उसे हमेशा बरकत बख्शी है। किस वजह से? कि उसने खुदा के हुक्म की पहले पैरवी की, उसने खुदा के हुक्म को सुना। खुदा ने उससे बोला कि सब कुछ छोड़ दे, जो तेरा इधर है उसको सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे चल। तो जब हम भी खुदा की आवाज़ को सुनेंगे, खुदा के जिंदा बख्श कलाम को सुनेंगे, और खुदा जो हमसे चाहता है कि हम इन इब्लीसी कामों को, शरारतों को, दुनियावी चीज़ों को छोड़ेंगे, तो खुदा का जलाल, उसका कलाम हमारी ज़िंदगी में जाहिर होगा। क्योंकि जब तक हम खुदा के कलाम को नहीं सुनते, उसकी आवाज़ को नहीं पहचानते, उसका जलाल, उसकी बरकत, उसकी कुदरत हमारी ज़िंदगी में जाहिर नहीं होती। आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करूँगा। हम में से बहुत से लोग, घर की बात है, हम में से बहुत से लोग हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें लाने की सोच में रहते हैं। घर के लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें खरीदें, फर्नीचर हो गया, बर्तन हो गए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खरीदने की चाहते होते हैं कि हम सबके लिए क्या करें, कुछ ना कुछ खरीदें अपने घर के लिए। तो जब हम लोग, एक चीज़ है आपके घर में, एग्जाम्पल बर्तन है, बर्तनों का ढेर एक शोकेस में पड़ा हुआ है, लेकिन क्या है कि आप फिर और बर्तन ला रहे हैं, फिर और बर्तन ला रहे हैं। अभी तक वो बर्तन जो शोकेस में पड़े, अलमारी में पड़े, वो तो सेट हैं, लेकिन कुछ ऐसे बर्तन जो डब्बे में भी पड़े हुए, क्या है, हम उन्हें इस्तेमाल नहीं करते। हम क्या करते हैं, ला के रखते जाते हैं। क्या है कि यार कोई मेहमान आता है, उसके लिए लाएंगे, उसके लिए खोलेंगे, उसको दिखाएंगे, उसको दिखाने के लिए आप बर्तन है। खुदा ने आपको एग्जाम्पल बरकत बख्शी है कि आपको फाइनेंस दिया, आप कुछ चीज़ खरीदते हैं, तो खुदा ने आपके लिए दिया है या किसी के लिए दिया? खुदा ने जब आपको बरकत बख्शी एज अ फाइनेंस, मतलब आपको माली तौर पर बरकत बख्शी कि आप वो चीज़ खरीदे, तो वो आपके लिए खुदा ने बख्शी है किसी और के लिए? तो फिर हम लोगों की क्या सोच होती है कि जब कोई आएगा हम उसे दिखाएंगे। हम लोग तो इस्तेमाल ही नहीं करते। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं हम किसी के लिए रख लेते हैं। खुदा बरकत हमें देता है, खुदा वो चीज़ हमारे लिए देता है, हम क्या करते हैं, उसको ले आते हैं, उसको संभाल कर साइड पर रख देते हैं और अपने घर की क्या करते हैं, जगह को कम करते हैं। इसी तरह जब देखेंगे, जब आपके घर में कोई आएगा, उस चीज़ को देखेगा, वो क्या करेगा, मतलब एक बर्तन है, उसके अंदर वो प्लेट आपने रखी है, वो खाना खा रहा है, वो प्लेट तो नहीं खा रहा, वो खाना ही खा रहा है। वो आपकी पुरानी प्लेट में भी खाना खाएगा तो उसने आपको कुछ नहीं कहना, उसने नई प्लेट में भी खाना तो कुछ नहीं कहना। एग्जाम्पल क्या है कि हम लोग दुनिया को दिखावे के लिए हरकतें करते हैं। बरकत हमें मिलती है, हम दूसरों के लिए रख छोड़ते हैं। हम कहते हैं कि हम दुनिया को दिखाएंगे कि खुदा ने मुझे बरकत दी है। खुदा ने अगर हमें बरकत दी है तो हमें शुक्रगुजारी करनी है और उसकी पैरवी करनी है, ना कि हमें दुनियादारी को दिखाने की जरूरत है। जब हम दुनिया को दिखाने की भागदौड़ में जाते हैं तो हमारी बरकत कम होती है, वो हमारी जगह गिरती जाती है। जैसे कि आपकी ज़िंदगी में जब कोई चीज़ है आप उसे निकालेंगे नहीं तो दूसरी चीज़ आपकी ज़िंदगी में कैसे आएगी? आपके घर में एक खराब चीज़ पड़ी हुई है, पुरानी चीज़ पड़ी हुई है, आप उसको निकाल नहीं रहे और आप उसकी जगह पर नई चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इससे लाके इसको ऊपर रखेंगे, तो वो क्या होगा, आपका घर कंजस्टेड का मतलब तंग होगा। वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी क्या होती है, तंग हो जाती है जब हम अपनी ज़िंदगी में से, अपने दिल में से, अपनी सोचों में से, अपने दिमाग में से पुरानी चीज़ों को नहीं निकालते।
जब हम पुरानी चीज़ों को निकालेंगे, खुदा के कलाम को उसकी जगह पे ऐड करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में खुदा का चलान जाहिर होगा। जब हम पुरानी चीज़ों को भी रखेंगे और नई खुदा के कलाम को भी कहेंगे जी हम खुदा का कलाम भी सुनते हैं, तो कैसे हम बंदी कर रहे हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं उसको माफ़ करना, लेकिन हम माफ़ नहीं कर रहे। हमारे दिल में बंदी है कि मैं नहीं माफ़ करना, मेरे लिए गलत काम करना, सीधे गुनाह कर दिया, मार यार मेरी मुसीबत कुछ कम नहीं आया। तो क्या है कि हमारे दिल में क्या चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं। हम जब पुरानी चीज़ों को भी रख लेंगे तो नई चीज़ें उस जगह पर फिट नहीं होती। जब तक हम पुरानी चीज़ों को निकालते नहीं तो नई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में फिट नहीं होंगी। जब तक हम पुराने सामान को जो टूटा हुआ, फूटा, खराब है, बेकार है, उसको निकाल के नहीं गए, तब तक हम अपने घर में नई चीज़ नहीं रखेंगे। अगर रखेंगे भी तो दोनों क्या होंगी, खराब ही नजर आएंगी। अगर आप अच्छी चीज़ के साथ बुरी चीज़ रख दें तो क्या आपको अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी, वो खराब ही नजर आएगी। आप सफाई में, आपने पूरे घर में सफाई कर ली, जगह पे कचरा रख दे, क्या करते हैं, सिर्फ कचरा रख दे बास्केट के अंदर, और उसकी स्मेल पूरे घर में नहीं आती है। इसी तरह जब हमारी ज़िंदगी में, हमारे ज़हनों में, हमारे दिलों में, हमारी सोचों में, हमारी रूह में, जो हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा का रूह है, हम कहते हैं खुदा में रूह दे। खुदा का रूह तो तब आएगा जब हमारा अपना पर्सनली रूह जो खुदा ने हमें बख्शा है वो क्लीन हो। जब वो क्लीन होगा तो खुदा का पाक उस पर एंटर करेगा। जब तक हमारी बॉडी क्लीन नहीं होगी, हमारा दिल क्लीन नहीं होगा, तो खुदा की जो पाक नजूरी है, खुदा का पाक रूह है, खुदा का पाक कलाम है, वो हमारी ज़िंदगी में नहीं आता। जब तक खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा, हमारी ज़िंदगी, हमारे कंधों पर से बोझ कैसे उठाया जाए? हमारे कंधों पर से बोझ नहीं उठाया जाएगा। हमारी गर्दन के ऊपर जो जुआ रखा हुआ है वो कभी नहीं टूटेगा, वो कभी नहीं उठाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी अभी भी पुरानी चीज़ों को पकड़े हुए, उनको निकाल नहीं रही, हम उनको संभाले हुए हैं। कुछ ऐसे घर हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम 100 साल जाएंगे, कुछ ऐसे घरों में जाएँ तो कहेंगे यार ये हमारे पास बड़ी अंटीक चीज़ पड़ी है, बहुत पुरानी पड़ी है, नहीं है, वो भी ला के रखो। यह है कि हम जगह को घेर रहे हैं, जगह को तंग कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में भी हम ऐसे ही करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को तंग करना शुरू करते हैं। हम हर एक चीज़ को अपने अंदर संभालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उधर से हम अपनी शरारतें भी करते हैं, बीच की भी सुन लेते हैं, उधर से हम कलाम भी सुन लेते हैं। हम दोनों चीज़ों को सुन लेते हैं और हम कहते हैं कि जी हमारी ज़िंदगी में खुदा आ गया। नहीं, जब तक हमारी ज़िंदगी से प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी, सफाई नहीं होगी, हमारे जहनों, हमारे दिलों, हमारी रूह की, तब तक खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। वो हम सुनते हैं, वो बीज की मिसाल की तरह कि बीज बोया गया झाड़ियों में, वो बोया गया, गिरे, झाड़ियों में गिरे, उगा, तनावा दरख्त सा बना, लेकिन क्या किया, झाड़ियों ने उसे बोझ नहीं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी जब उसी तरह हम कलाम का बीज बोते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ऊपर से हमारी दुनियावी चीज़ें, हमारी जो दूसरी पुरानी चीज़ें हैं, वो उन्हें कलाम को दबा देती हैं, वो उसको बाहर निकलने नहीं देती। इब्राहिम ने क्या किया, अपने बाप का घर छोड़ा, अपने रिश्तेदार छोड़ दिए, अपना मुल्क छोड़ दिया, किसके लिए, खुदा के लिए। हम खुदा के लिए क्या कर सकते हैं, हमने खुदा के लिए अपने टाइम को छोड़ा। हम सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का टाइम करें, रिजर्व करें, खुदा के लिए मखसूस करें कि हमने ये अपने 24 घंटे में से खुदा को टाइम देना है। फिर अपने हफ्ते का टाइम सेट करें, संडे का टाइम सेट करें, खुदा के हुजूर आए, खुदा के हुजूर पर चले, फिर हम अपने अमालों को देखें, जाके हमारी ज़िंदगी के जो बोझ है हमारे कंधों के ऊपर वो उठाया जा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि नहीं, हम हर चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, हम हर चीज़ को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। नहीं, जब तक हम अपनी ज़िंदगी को खुदा के तरीके से नहीं चलाएंगे, खुदा की मर्जी से नहीं चलाएंगे, हमारी ज़िंदगी का जो कंधों का बोझ है वो उठाया नहीं जाएगा, हमारा जुआ नहीं टूटेगा। क्योंकि जब तक हम खुदा की नहीं सुनते, हम खुदा की सुनते ज़रूर है, लेकिन एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दिया। हम खुदा का कलाम सुनते ज़रूर है, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। क्या है कि इस तरह हमारी ज़िंदगी में जो बर्डन है, जो जुआ है, वो नहीं टूटेगा। जो बर्डन्स, प्रॉब्लम्स आते हैं, जो रुकावटें आती हैं, वो कैसे ख़त्म होंगी, कि जब तक हम प्रॉपर एक तरीके के साथ जो खुदा का कलाम सुनने और उस पर अमल करने की ज़रूरत है, हम करेंगे नहीं, हमारे कंधों से बोझ कभी नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम खुदा की नहीं सुनते, हमारे बोझ नहीं होते। मेरे साथ एक हवाला निकालिए, यशायाह नबी का सहीफा, उसका 14 बाब, उसकी 25 से 27 आयत पर हम गौर करेंगे। बड़ी प्यारी आयत है। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 14 बाब, उसकी 25 से 27 आयत। मैं अपने ही मुल्क में असवारी को शिकस्त दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे पांव तले लताड़ूंगा, तब उसका जुआ उन पर से उतरेगा
और उसका बोझ उनके कंधों पर से टलेगा। सारी दुनिया की बाबत यही है और सब कौमों पर यही हाथ बढ़ाया गया है, क्योंकि रब्बुल फाज ने इरादा किया है और उसे बाकी करेगा, और उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोकेगा। आमीन। अगर हम लोग आज की जिंदगी में 3 दिन 4 दिन पहले पर गौर करें तो हमारे पाकिस्तान में किसान का हुआ, उसमें बहुत से खुदा के घर जलाए गए, मुकद्दस को जलाया गया और उसको जलाया गया, हमारे मसीही भाइयों के बहन भाइयों के घरों को भी तबाह किया गया और लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या कहता है? मैं अपने ही मुल्क में सवारी को शिकस्त दूँ और अपने पहाड़ों पर उसे पांव तले लगाऊंगा। खुदा का कलाम कह रहा है, जब हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं, तो ये हमारी जिंदगी में सामने आ गया है। खुदा उसको टालेगा, खुदा उसके खिलाफ मुकाबला करेगा, खुदा उसे शिकस्त देगा, उसे अपने पांव तले लताड़ेगा, उसे दबाएगा। तो जैसे खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर पुलिस को अपने पांव तले कुचल दिया था, उसी तरह खुदा का कलाम आज भी अब्दुल्लाबाद है जो कहता है कि मैं उसे अपने पांव तले लताड़ूंगा। तो खुदा जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, खुदा उन्हें सिखाता है। खुदा ने अपने कलाम में वाज़ेह तौर पर कहा है कि मैं उन्हें अपने पांव तले लताड़ूंगा, उन्हें शिकस्त दूंगा। और उससे आगे भी एक्चुअली क्या है, सारी दुनिया की बाबत यही है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, जितने भी हमारी मसीह को पूरी दुनिया में है, खुदा ने उसकी बाबत यही कहा गया है और सब कौमों पर यही हाथ बढ़ाया गया। खुदा का जो हाथ है वो सिर्फ छोटा नहीं कि जो हमें बचा ना सके, खुदा का कलाम कहता है। और खुदा के कलाम में यही लिखा है कि सारी दुनिया पर, सारी कौमों पर यही हाथ बढ़ाया गया है। खुदा उनकी हिफाजत के बात करेगा, क्योंकि रब्बुल फाज ने इरादा किया है। जब खुदा हमारा कोई इरादा करता है तो उस इरादे को कोई बातिल कर सकता है? नहीं, क्योंकि हमारा जिंदा आसमानी खुदा है, आसमानी बाप है, ज़मीन और आसमान का खालिक और मालिक है। और कोई ऐसा काम नहीं जो उसकी पहुंच से बाहर हो, जो उसकी कुदरत से बाहर हो, जो उसकी ताकत से बाहर हो, जो उसकी हाथ से बाहर हो। तो क्या है कि जब खुदा रब्बुल फाज हमारा कोई काम का इरादा करता है तो उसे कोई बातिल नहीं कर सकता, और जब वो अपना हाथ बढ़ाता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जिंदा आसमानी खुदा जब किसी चीज़ का इरादा और काम करने की सोच रखता है तो वो होती है। खुदा ने कहा कि ज़मीन बन जाए तो वो बनती कोई रोक सका? खुदा ने इंसान को बनाया तो कोई रोक सका? खुदा ने मिस्र से इसराइली कौम को निकाला, उसको फ़िरौन रोक सका? नहीं रोक सका। खुदा ने बहरे कुर्दम के 2 हिस्से करके उसको निकाल दिया। क्या? तो खुदा का हाथ उनके साथ, खुदा का हाथ उन पर था, खुदा उनके साथ चल रहा था। तो जब खुदा हमारे साथ होता है, उसका हाथ हमारे ऊपर होता है, तो वो ऐसे लोगों को शिकस्त देने की कुदरत और ताकत रखता है, वो ऐसे लोगों को अपने पांव तले कुचलने की ताकत रखता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हमें अपने खुदा की बात को सुनने की ज़रूरत है। जब हम अपने खुदा की सुनेंगे, जैसे इब्राहिम ने सुनी, जैसे मूसा ने सुनी थी, जैसे नूह ने सुनी, खुदा ने उससे कहा था कश्ती बनाओ, उसने बनाना शुरू कर दिया। खुदा ने मूसा को कहा कि जा मिस्र से इस्राएल कौम को लेके चल, कोई नहीं चला। जैसे खुदा ने यशुआ को कहा कि तू आगे चल, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ हूँ। आज का कलाम हमारे लिए है कि जैसे मूसा के साथ था, यशुआ के साथ था, वैसे ही हमारे भी साथ है। तो हमें खुदा पर ईमान रखने की ज़रूरत है, उस पर अटल ईमान रखने की ज़रूरत है कि खुदा जब मूसा के साथ था, यशुआ के साथ था, तो वो हमारे भी साथ है। वो हमारी हर एक प्रॉब्लम में हमारा निगहबान हिफाजत होता है, हमारे सफ़र और हमारी ढाल होता है, वो हमारे यहाँ बचाने की कुदरत और ताकत रखता है। वो हमारे जो कंधों पर से बोझ है उससे उठाने की कुदरत रखता है, हमारी गर्दन पर जो जुआ है उसे तोड़ने की भी कुदरत रखता है। लेकिन क्या है पॉइंट, क्या हमारा कि उसके हुक्म को जब हम मानेंगे, तब इब्राहिम ने उसके हुक्म को माना तो खुदा ने उसे इतना सरफराज किया कि कोई दुनिया का आदमी जज नहीं कर सकता कि उसके पास कितनी बरकत अभी तक उसके नाम से बढ़ते चल रही है। तो ये क्या है कि जब उसने खुदा की सुनी, उसने हर एक चीज़ को रिमूव किया अपनी ज़िंदगी से। खुदा ने बोला कि इसको छोड़ दे, निकल यहाँ से, उसने सब कुछ छोड़ा और निकला। जब खुदा हमें कहे कि इन चीज़ों को छोड़ और मेरी तरफ आ, इस दुनिया से निकल और मेरी तरफ आ, तो हमें उसकी सुनने की जरूरत है। जब हम उसकी सुनेंगे तो हमारी गर्दन में से जुआ टूट जाएगा, हमारे कंधों पर से बोझ उतर जाएगा। मेरे साथ एक हवाला और निकालिएगा, ये साया नबी उसका 52 चैप्टर उसकी दूसरी वर्ष है। ये हमारे लिए आज की मुताबिक एक वर्ष है। अपने ऊपर से गर्द को झाड़ दे, उठ कर बैठ, आए यरूशलेम, आए असीर, उठकर सयून अपनी गर्दन के बंधनों को खोलता। हमें हमारा दोबारा निकाल लीजिए और पढ़िए, अपने ऊपर से गर्द को झाड़,
जब हमारे ऊपर थोड़ी सी मट्टी आती है तो हम उससे कपड़ों को झाड़ते हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी के ऊपर भी, हमारी ज़िंदगी के हर लम्हात में हमें शैतान डगमगाता है, हमारे ऊपर मट्टी डालता है, कीचड़ डालने की कोशिश करता है कि हम इसी दलदल में धंसे रहें, हम इससे बाहर ना निकलें। तो खुदा का कलाम हमें क्या कहता है? उठ और अपने आप को झाड़। आज हमें अपने आप पर गौर करने की ज़रूरत है। हम अपने आप को झाड़े। हमारे ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत है, अगर हमारे ऊपर कोई खुदा का कलाम जाहिर होता है और हम उस पर अमल नहीं कर पा रहे, तो उस पर अमल करें। अपने ऊपर से इब्लीस की गर्द को झाड़े ताकि खुदा का कलाम हम पर जाहिर हो। आगे वाले हिस्सा में लिखा है, आए यरूशलेम, आए असीर पुत्र सयून, अपनी गर्दन के बंधन को खोल डाल। खुदा ने हमें ये इख्तियार खुद दे दिया है कि अपनी गर्दन के बंधन को खोल डाल, अपनी गर्दन के जुए को तोड़ो। जब हम लोग खुदा के कलाम को सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, अपने जिस्म से, अपनी ज़िंदगी से गर्द को झाड़ेंगे, अपने कपड़ों को, अपने जिस्म को झाड़े, अपनी ज़िंदगी को झाड़े और गौर करें कि हमारी ज़िंदगी पर किस किस्म की गर्द है, किस किस्म की शैतान हमारी ज़िंदगी में कीचड़ हमारे ऊपर फेंकता है, उसे झाड़े ताकि हमारी ज़िंदगी पर खुदा का कलाम जाहिर हो, हमारे ऊपर खुदा के नूर की रोशनी चमके, ताकि हम अपनी गर्दन के जो बंधन है, जुए हैं, उनको तोड़ सके। खुदा ने हमें ये इख्तियार खुद दे दिया है कि अपनी गर्दन के जुओं, बंधनों को खोल दा। तो जब खुदा हमें इख्तियार देता है तो हमारे पास वो अथॉरिटी हो जाती है। खुदा ने खुदा के कलाम में लिखा है कि जाओ बिच्छुओं और सांपों को अपने पाँव तले कुचलो और इब्लीस की सारी ताकत पर गालिब आओ। ये भी इख्तियार खुदा ने हमें बख्शा है। जब हम लोग बस खुदा के ताबे होंगे, जब हम खुदा के ताबे होंगे, जैसे इब्राहिम था वो खुदा का ताबे हुआ, उसने अपनी ज़िंदगी में से हर एक वो चीज़ छोड़ दी जो खुदा को नापसंद थी। तो हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें खुदा को नापसंद है उसे छोड़ दें, उसे झाड़े ताकि खुदा का जो कलाम है हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो, हम खुदा के फर्मा बरदार हो, उसके ताबे हो। जब हम खुदा के ताबे होंगे तो अपनी हमारे पाँव तले होगा। हमारी गर्दन का जो बोझ है, जुआ है, जो बंधन है, वो हम खुद खोल कर फेंक सकते हैं। खुदा ने हमें अथॉरिटी बख्शी हुई है। तो क्या है कि हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी में क्या है। आपके घर में जो कुछ भी आपको पता है, आपके घर में कोई कमी पेशी आपको पता है, आपकी ज़िंदगी में कोई कमी पेशी आपको पता है, आपकी ज़िंदगी में जो भी मतलब कोई बदी है, गुनाह है, कोई अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ है, वो सब आपको पता है। मुझे मेरी ज़िंदगी का पता है। इसी तरह आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और इस चीज़ को देखें कि हमारी ज़िंदगी में किस किस्म की गर्द है, उसे झाड़े और हम ताकि खुदा के ताबे हो, हम खुदा के फरमाबरदार हो और अपने बंधन, अपने जुओं को खुद खोलें ताकि खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो। जैसे खुदा ने कहा है कि मैं इस बीमारी को खुद शिकस्त दूंगा, तो अपने पाँव तले लताड़ूंगा। और ये सब हमारे लिए कहा गया, हमारी मसीही कौम के लिए कहा गया है। जब हम खुदा के हुजूर चलेंगे, उसके ताबे होंगे, उसके फरमान को सुनेंगे, उसके हुक्म को सुनेंगे, तो हमारी ज़िंदगी की गर्द झड़ जाएगी। हमारी ज़िंदगी के जितने भी बंधन हैं, जुए हैं, रुकावटें हैं, ये नाम से टूटेगी। खुदा लिखा है कि मसा के सबब से टूटेगी। जब हमारी ज़िंदगी में खुदा का कलाम होगा, उसका पाकू होगा, उसकी प्रस्तिश करने वाले हम होंगे रूह सच्चाई से, तो खुदा का मसा हमारी ज़िंदगी में होगा और उसी मसा के सबब से हमारी ज़िंदगी के जुए टूटते हैं। हालेलुया। हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। मेरे साथ आखिरी हवाला निकालिए सब लोग, यशायाह नबी की किताब, उसका 12 बाब, उसमें कुछ बड़ी ही कमाल की बातें लिखी है शुक्रगुजारी के हवाले से। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 12 बाब, उसकी 1 से 6 आयत है। हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे क्योंकि ये हम सब के लिए, जितने भी बहन भाइयों के पास बाइबल मुकद्दस है वो बराए मेहरबानी निकाले और 12 बाब और उसकी 1 से 6 आयत है। जब हम लोग इस आयत को अपनी ज़िंदगी में लेंगे, इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में एक बीज की मानद बोएंगे, तो वो तनावा दरख्त की मानद जड़ पकड़ेगा। जब वो तनावा दरख्त की तरह जड़ पकड़ेगा तो हमारी ज़िंदगी हरी भरी होगी। जब हमारी ज़िंदगी हरी भरी होगी तो अब ये सबसे दूरी भागेगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में खुदा का जलाल, उसका नूर है। अगर सब ने निकाल ली है तो सब मेरे साथ मिलकर ये पढ़े। खुदा आज के कलाम की वजह सबको ज़रूर बख्शेगा। और ये शुक्रगुजारी का गीत है जो यशायाह नबी के वसीले से खुदा ने इस कलाम में लिखवाया है। हम सब इसको मिलकर पढ़ेंगे। जितने भी बहन भाइयों के पास खुदा का कलाम है वो सब निकाले और मेरे साथ शुरू करें। और उस वक्त तू कहेगा मैं तो तेरी सताइश करूँगा कि अगर तू मुझसे ना कुछ था तो भी तेरा कहर टल गया और तूने मुझे तसल्ली दी। देखो खुदावंद मेरी जात है, मैं उस पर तवक्कल करूँगा और ना डरूँगा, क्योंकि या यहोवा मेरा जोर और मेरा सर है और वो मेरी निजात हुआ है।
बस तुम खुश होकर जान के चश्मों से पानी भरोगे और उस वक्त तुमको कहोगे खुदावंद की सताइश करो, उससे दुआ करो, लोगों के दरमियान उसके कामों का बयान करो और कहो उसका नाम बुलंद है। खुदावंद की मदद सराही करो क्योंकि उसने जलाली काम किए जिनको तमाम दुनिया जानती है। आए सयून के बसने वाली तू चला और ललकार क्योंकि तुझ में इस्राएल का कुदूस है। आमीन। ये बहुत प्यारी कोशिश है, ये शुक्रगुजारी की दुआ भी है, गीत भी है। जब हम लोग इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्व करें, अपनी ज़िंदगी में लें, तो ये हमारे लिए ऐसे बरकत है। आखिरी वर्ष में आखिरी लाइन में लिखा है क्योंकि तुझ में इस्राएल का कदूस बुजुर्ग है। ये हमारे लिए है। इस्राएल का कदूस बुजुर्ग कौन है? हालेलुया। जब हमारी ज़िंदगी में इस्राएल का कदूस बुजुर्ग है तो हमें किस चीज़ की टेंशन होगी? हमें इन चीज़ों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुदा हमारे साथ, क्योंकि हमारी सरपरस्ती हमारी नाल है। वो हमें गहरे पानियों में से भी निकालने की कुदरत और ताकत रखता है। वो हमें समुद्रों और तूफानों में से भी निकालने की कुदरत और ताकत रखता है। वो पहाड़ को चीर कर भी हमें निकालने की कुदरत और ताकत रखता है। तो जब हमारी ज़िंदगी में कदूस बुजुर्ग है, खुदा यीशु मसीह है, उसका जलाल है, वो हमारी निजात है, तो हमें किसी भी इंसान की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो इब्लीस हमारी ज़िंदगी में रुकावटें पैदा करता है, शैतानी चालाकियाँ करता है, हमें उसको रद्द करना है और खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है हर वक्त। क्यों? क्योंकि उसके अजीब कामों को पूरी दुनिया जानती है। हमें कलाम में लिखा है कि जितने भी काम खुदा ने किए हैं सारी दुनिया जानती है। तो इब्लीस क्या करता है? उसको छुपाने की कोशिश करता है, उनके अजीब कामों में रुकावटें पैदा करता है। हर एक जान जानती है कि निजात किसके वसीला से आई? खुदा यीशु मसीह के वसीला से। और खुदा यीशु मसीह सलीब पर हुए ताकि हम लोग बचें और जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। तो हर एक फिरका, हर एक मजहब जानता है कि खुदा यीशु मसीह हमारी निजात है। तो जब वो जानते हैं तो वो जानबूझकर इस तरह के काम करते हैं। तो हमें उनके लिए दुआ करने की जरूरत है कि खुदा खुद उन्हें मलामत करे। जब मूसा वफात पा गया तो उस पर मकाई फरिश्ता और पुलिस ने झगड़ा किया कि मूसा ने क्या किया है, गुनाह किया, इसकी लाश को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा। लेकिन मकाई ने क्या कहा कि खुदा तुझे खुद मलामत करेगा, खुदा तुझे खुद पूछेगा। मकाई फरिश्ता के पास ताकत दी थी, खुदा ने उसे बहुत सी ताकतें बख्शी, अथॉरिटी बख्शी है कि वो मुकाबला कर सकता है। लेकिन फिर भी उसने कहा कि खुदा तुझे मलामत करेगा, खुदा तुझे पूछेगा। आज हम भी यही कहेंगे कि खुदा उन लोगों से पूछेगा। हमें सिर्फ उनके लिए दुआ करने की जरूरत है जो हमारे कम ज़्यादा मस्कीन बहन भाई हैं। हमें उनके लिए एक साथ होकर, एक जान होकर दुआ करने की जरूरत है कि खुदा इस बुरे वक्त में, इन हालातों में खुदा उनकी रहनुमाई करे, उन्हें वो इत्मीनान, तहम्मुल, तसल्ली बख्शे जो खुदा यीशु मसीह ने हमें बख्शा है, ताकि वो इस इत्मीनान के वसीला से खुदा उनके नाम को जलाल देने वाले बने। आज वो खुदा उनके नाम की प्रस्तिश करने वाले बने। तो इसमें आ रहा था कि आज चर्च तबाह हुए हैं, लेकिन फिर भी उन जगहों पर क्या होगी? इबादत होगी। तो क्या है कि खुदा का नाम, खुदा का जलाल, खुदा का काम नहीं रुक सकता। इब्लीस कैसे भी काम कर ले, अगर हमारे अंदर खुदा का डर खौफ और हमारे अंदर खुदा की हिम्मत और ताकत होगी तो हम खुदा के नाम को क्या करते जाएंगे? जलाल देते जाएंगे, उसकी तज़ीम करते जाएंगे। तो क्या है कि हमें अपने काम को नहीं रोकना, इब्लीस जैसे मर्जी करने जाए, हमें खुदा के नाम को जलाल देते रहना है, उसकी तज़ीम और सताइश करते रहना है। मैं ईमान रखता हूँ आज के कलाम के वसीला से आप सबने बरकत पाई हो और अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिएगा ताकि आज हमारी ज़िंदगी के ऊपर जितनी भी गलत है वो हम छाएँ और खुदा के फजल से, उसके मसा से हमारी ज़िंदगी के बंधन छूबे, हमारे कंधों से, गर्दनों से, हमारी ज़िंदगी से टूटे, रुकावटें खत्म हो, ताकि खुदा का जलाल, खुदा का नूर हमारी ज़िंदगी में कसरत से चले। आमीन। के साथ हो